Hello, welcome back. Yeah, hello. So, what's today's topic? Yeah, so I think we can talk more about the corporate job sector and people Mm-hmm. who are doing that in general. Like we did have conversation about job and realizing one's purpose and existence as a whole, but I also feel that we can walk through how it can look like for people who are there already in the work culture and how they can find their purpose, how they can look forward and plan their lives ahead uh, because it should be you can give some tangible examples of as examples, not exactly for all one fit for all, but examples as to how people can really work on themselves to make their lives more meaningful. So let's create some personas. Let's start by creating some personas. For example, let's take an example of a newly graduate young person who has entered the corporate job, and they found everything to be good, but slowly they started finding the life to not be as meaningful, or in fact meaningless for that matter, and they feel they are stuck. And now they don't know, because they have invested, like, I mean, coming a typical Indian family would have invested a lot of their earnings and savings into the child's education, and now just quitting the job is not an option for so many people. So at that point they either prepare for you they think of preparing for UPSC, or maybe they think of preparing for MBAs and then getting into MBA and then getting more package, or if possible then people think of flying abroad. So but eventually is would all these options, or would any of these options fulfill any of their dreams that they want? If not, what would, and how they can actually look through it and plan it for themselves, and how you see that? Can you throw some light? Right. So, this is interesting. Uh, first of all, I'm just looking back and thinking that uh, how capable I am, or in a way, there's this evidence, और उसको क्या बोलते हैं ना कि मतलब उस पे अधिकार बनता है क्या? तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि मेरा ना इस चीज़ पे बहुत अधिकार बनता है बोलने का, मतलब स्पेसिफिकली बिकॉज मतलब आई वर्कड इन अ कॉर्पोरेट जॉब फॉर लेस देन 2 months. मतलब आई जॉइंड एंड आई क्विट बिकॉज आई वाज लाइक कि नहीं, कॉर्पोरेट जॉब्स तो मेरे लिए बहुत काम नहीं कर रहे हैं वाला. तो अभी अगर मैं कोई चीज़ बोल भी रहा हूँ तो आई थिंक आई विल बी जस्ट लुकिंग, इमेजिनिंग सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर गोइंग थ्रू दैट एंड प्रोबेबली एंड देन आई विल से समथिंग. बट एट द सेम टाइम मतलब व्हेन यू आर सेइंग, एक ना अगर हम एक स्टैंडर्ड तरीके को भी देखें, मतलब द वे आई हैव सीन थिंग्स इन कॉलेज एंड देन हाउ थिंग्स गो ऑन, एक पार्ट मुझे ऐसा दिखा कि समहाउ ना हम, मतलब इट इज़ वेरी क्लियर कि हम ना स्टडी ही कर रहे होते हैं जॉब के लिए, है ना. मतलब वो पूरा का पूरा कि कौन सी चीज़ मेरे रिज्यूमे में अच्छी दिखेगी, और स्कोर अच्छा आएगा तो उससे क्या होगा, और कौन से कोर्सेज. तो आई ऑलवेज सी दिस थिंग, या एक एक जो प्रिपरेशन हो रही थी दैट इज़ ऑलवेज अबाउट, अरे कौन सी कंपनीज आने वाली हैं, उसके लिए किस तरीके का प्रिपरेशन करना है. एंड देन अगर मैं ये वाली इंटर्नशिप कर लूँगा तो उससे ये जॉब मिलेगा, और ये वाली इंटर्नशिप कर लूँगा तो वो और आगे के लिए अच्छा होगा. तो जो पूरा ड्राइव है वो हमेशा उस तरफ पे रहता है कि कौन सा जॉब बेटर मिल जाएगा, है ना. समहाउ एक जो चीज़ वहाँ पे ऐसा लगता है कि मिस होती हुई, क्या हम बहुत क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि ये जो भी हम जॉब करना चाह रहे हैं, या जो भी हम जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इसको जो करना चाह रहे हैं, उसमें से एजुकेशन का जो रियल इंटेंशन था वो आया या नहीं आया, या मतलब हम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम वो जो थ्री इडियट्स मूवी Hmm. थी ना जिसमें रैंचो सेज दिस, कि आप किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. कि फाइनली क्या हम पूरी की पूरी सिस्टम में जब हमने स्टार्ट से ही वो किया तो हम उसको सिर्फ जॉब के लिए ही कर रहे थे, कि वॉज देयर सम डीपर अ डीपर पर्पस टू इट, और इन अ वे दैट, मतलब मेरी कोई लर्निंग की थर्स्ट है जो मैं उससे क्वेंच कर रहा था, कि रादर देन कि नहीं, इट वाज ऑल अलाइन टू अ जॉब. व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव? I mean, I feel most of them are oblivious to even the fact that there could be meaning beyond job. I mean, people start, at least anecdotally, I feel most of my age group started becoming aware about any meaning or careers, or a tangible career which would give some meaning in college, or maybe after college, not even Okay. during. So in school time, I hardly think anyone was even thinking anything near to meaning and purpose. Mm-hmm. It was just people were just must and oblivious to this because they were not taught,
and neither there was some structure to support it. So it was just to get marks, to get good grades, maybe play, and just keep up with the trend, be cool or something like that. There wasn't really big, people weren't looking at the bigger picture per se. But when they started looking at the bigger picture, I feel it was probably, I don't know how it will sound, but it was kind of too late for many people, because then by then their parents had invested so much of money that even then if they did start right. looking for it, they did not have an option. It's like now you are in it. I mean, you probably end up you are chasing something. It's just like I'll give you some good example. Like, you are chasing for something and you ended up behind the bars in a jail, and then when you did not find, or maybe you found it, and then you look back and you're in prison. Now you are stuck in it. Now what do? That's how I feel most of the people find themselves to be, because not everyone has that leverage to now do something else. So, and apart from the physical factor, So essentially you're saying that मतलब एक वो जो copy paste वाला है कि even I have no idea क्या हो रहा है या क्या चल रहा है, it's just that someone else is doing this route, Yes. और या फिर घर पे किसी ने बोला, या बाकी पूरी दुनिया को ऐसा करता हुआ देखो और हमने भी ऐसा कर दिया, now we are यहाँ पहुंचने के बाद रियलाइज हो रहा है, मतलब जब आँख खुली तो पता लगा कि अच्छा हम तो कहीं फंसे हुए हैं. And even if people did brainstorm for careers, they could not look beyond the just fact of passion, or maybe am I capable, like only aptitude and passion was the thing that they could see through, but they could not connect it to the higher meaning of if this education would give me something else, or am I signing up for something higher. So when that vision was not developed, and when it does start developing with age or with maturity for that matter, not everyone. And in fact, मतलब a lot of self-help books and the so-called motivational speakers, they're always saying कि life, मतलब जो work है, that work should give you purpose, work should give you purpose. So I find it quite intriguing, क्योंकि purpose of life is a very separate, I mean, purpose of life is there by life itself. मतलब आप जिंदा हो और आप जी रहे हो, तो उसके साथ ही वो पर्पस अलाइन हो जाता है. उस पर्पस के अंदर में आप अपना वर्क चूज करते हो, ना कि वर्क को पर्पस के लिए चूज करते हो. एग्जैक्टली. एंड समहाउ हमने उसको बहुत ऐसा कनेक्ट कर दिया कि नहीं, वर्क ही मुझे पर्पस देगा. एंड फेयर इनफ आल्सो, बिकॉज समवेयर you do, I mean, you spend 7 to 8 hours sleeping, and probably 8 to 10 hours working, and the rest of them are like what, your self maintenance or leisure activities, whatever. So they are not really into account. So the real stress, I'll say, or one of the major stressors in life for most of the people is finance and their careers. So somewhere people are looking for that to be sorted. And makes sense. मतलब 1/3 टाइम अगर आप अपनी लाइफ का जिस चीज में स्पेंड कर रहे हो, if that is purposeful, you start feeling कि हाँ मेरी पूरी लाइफ purposeful है. So then you are in some matrix. I mean, if I have to say that, you are 22, 23, you have graduated and you work for 2 years, you're 24, 25, and now you realize कि if at all you do start looking inwards, or maybe you become a bit aware, then you start realizing कि maybe this is not even getting me anywhere close to what I expected inherently. Like innately I wanted some peace, happiness, but I'm getting money, I'm getting paycheck, but there are the non-tangible or intangible things that start showing up, that you have to become a bit shrewd to get your work done. You become fearful, you become anxious, otherwise work is not done. I mean, if you just peacefully go and say, hey, please get the work done, it might not get done. But if you just say, oh my god, boss is asking for this file, then people will start rushing. So amidst doing all of that, you slowly realize that you have developed anxiety, which was not your natural tendency. And such are so many things, politics, and also by that age, after 2-3 years, I'm not sure when does it start, but I've also seen people, once they get a job and they have this life, and then they start getting then they start making some capital investments. For example, if your work is in Bangalore, let's say, so someone would buy a house in Bangalore thinking कि अच्छा मैं अब इसका रेंट दूंगा, उसकी जगह if I buy it and then I pay the EMI, so it becomes a capital. And then that EMI loop starts because you have to pay it for the next 15-20 years or whatever. True. And then you cannot leave your job, because if you leave your job, then you're stuck with that EMI. Yes. And so in a way, मतलब अब आप चाह के भी अगर कुछ अलग करना चाहो तो आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपने एक पूरा अपना एक
ट्रैजेक्टरी बना दिया है कि हाँ अब मेरे को इतने का ईएमआई देना है, इतने की मेरी बच्चों की स्कूल की फीस है, इतने का मेरा ये वाला खर्चा है, और वो मेरे को मीटअप करने के लिए ये मेरी लाइफस्टाइल है, सो आई हैव टू डू दिस जॉब, एंड देन दिस जॉब बिकम्स अ नेसेसिटी, मतलब नेसेसिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि इट बिकम्स मोर ऑफ क्या बोलना चाहिए उसको, अ रिस्ट्रिक्शन प्रोबेबली. Is Yes. that the right way to see it? Yeah, I mean, there are many levels and layers from what I know, but yes, it does. I mean, people who are otherwise more aware, they start seeing that, loop, or like that matrix, that if I do buy something which I probably don't need right now, I might get stuck. But people who are not aware by then, they just, in some kind of excitement, they just, oh, it would be my first house, it would be my first car, I want to make my friends jealous, my parents happy, they just go and buy it. Later, then maybe after few years, then they feel, oh my god, where have I landed up now? Even if they do realize ki maybe this was not meaningful at all, maybe I wanted to do something and I want to explore, they just feel stuck. I mean, I was working in a corporate, and there was a manager. She was in her late 40s or maybe early 50s, and at that point I had quit my corporate to work with an NGO. She told me, Vishal, I wish I could do what you're doing, but I do not have the privilege to do because of so many Already stuck, responsibilities. Yeah, मतलब मैंने अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन में डाल दिया है. Yeah. Now I have to stick to that direction. stick to I the cannot direction. change it Yeah, so then out of a whim. you get the point. I mean, I know it's very hard. I feel it's hard on people who do realize that they are stuck and probably they want to do something else or maybe explore the meaning, but they are just stuck. I mean, they just cannot come out, and probably many years of their life would be just in that job, just doing what they hate doing, and they have to do because they are obliged. So how So do I think yeah. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये वाला जो आपने पार्ट बोला, Hmm. एक चीज़ तो बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि मोस्ट ऑफ द डिसीजंस दैट वी हैव बीन टेकिंग, Hmm. हम आजू बाजू से देख के, या एक तरीके से जो समाज में एग्जिस्टिंग है, जो एक एनवायरनमेंट में एग्जिस्टिंग है, उसके बेसिस पे लेते आए हैं, विच इज़ फाइन. मतलब बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ही यंग एज में अब इतने अवेयर हैं कि हम एकदम एग्जिस्टेंस की जगह से देख के डिसीजंस लें. तो समहाउ एक वाला पार्ट तो ये दिखता है कि ना, सोसाइटी हैज़ टू ग्रो अप इन दैट सेंस कि मतलब एज सोसाइटी हम बहुत क्लियरली बता पाएँ लोगों को कि कौन सा डायरेक्शन या किस तरीके से जाना है और कैसे करना है. और वो जो फॉलोइंग है ना, वो जो इन्वायरमेंट है, वो पूरे इन्वायरमेंट को ही एक तरीके से बेटर करने की ज़रूरत पड़ेगी. उससे कम में मतलब आई फाइंड इट रादर डिफ़िकल्ट टू इमेजिन कि हर एक व्यक्ति जो है वो इतना अवेयर है. प्रोबेबली एजुकेशन से ऐसा हो भी सकता है कि हर व्यक्ति इतना अवेयर हो जाए, बट आई थिंक दे विल गो हैंड इन हैंड. मतलब एक तो व्यक्ति की भी अवेयरनेस बढ़नी पड़ेगी, ये पूरी सोसाइटी की भी अवेयरनेस बढ़नी पड़ेगी, एंड देन विल प्रोबेबली बी एबल टू फाइंड दैट रूट जहाँ पे मतलब मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, पूरे सोसाइटी के साथ मेरे क्या रिलेशनशिप्स हैं, और मेरे उसके बेसिस पे क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी क्या मीनिंग है, एंड फाइनली उसमें मैं जो भी मीनिंगफुल वर्क करता हूँ, फिर उसके वर्क के अलाइनमेंट में जो भी चीज़ें हैं. Makes sense. So, I mean, I also feel that, like, even, matlab, you placed it right that way, but it looks like a longer process. But most people who are stuck in those jobs, they just want an immediate answer. Tell me, kya karu? Matlab, I mean, how does that work? Like, if I'll give you my own experience, I for God's grace, I had the privilege to quit my corporate and work with an NGO. But even then, I came to a conclusion that NGO, maybe it's just the other side of the coin. I mean, it's not fundamentally any different because humans are all the same. NGO में different masks, different names, but finally the fundamental core of those people was the same. I mean, the greed, the politics, the everything that you were disturbed in the corporate, it was the same, maybe masked and packaged in a different way, but it was still the same. So then at that point, people start realizing ki maybe it's all the same, and then what to do. I mean, people cannot look at that alternate तो दैट्स व्हाट आई solution. थिंकिंग. मतलब ना, वुड एवरीवन, मतलब ना, जैसे हम इतने सारे लोगों से, अगर आई डोंट नो हमको कौन अभी देखने वाला है, बट मेरे को लगता है अलग अलग टाइम्स पे ना लोगों की भी अलग अलग एक साइकी होती है. फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि जैसे ना, अगर मेरे पास पहले से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके बाद ना हो सकता है मेरा रिस्क एपेटाइट कम है, बट देयर वुड बी सर्टेन
I would say early adopters या people who have a high risk appetite who want to take that jump. तो मैं तो इसको ऐसा ही देखता हूँ कि first of all we'll start with a few people. कुछ लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली लाइफ का पर्पस क्या है, कैसे जीना है, क्यों जीना है, ऑल दोज क्वेश्चंस आंसर्ड, और उसके अराउंड अपनी लाइफ की कोई ट्रैजेक्टरी, कोई स्टेबिलिटी बना पाएंगे. व्हेन दीज पीपल आर फाउंड लिविंग अ सेटिस्फाइड लाइफ, बाकी लोग उसको देख के इंस्पायर होंगे. एंड देन मतलब एक कर्व है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई थिंक इट वाज द अडॉप्शन कर्व, राइट. सो आप उस कर्व को देखेंगे ना, तो सबसे पहले आपके एकदम अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं. कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो नॉट एवरीवन जंप्स ऑन इट एट द सेम टाइम, राइट. सबसे पहले देयर आर वेरी अर्ली अडॉप्टर्स जो कि मतलब दे वांट टू टेक दैट रिस्क, दे वांट टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स एंड दे विल डू समथिंग. सो दिस इज अडॉप्शन कर्व. सो देन यू गॉट अर्ली अडॉप्टर्स जो कि सबसे पहले कोई टेक्नोलॉजी आती है तो दे विल ट्राई इट आउट, एंड है ना. And then there are the late adopters ones, and then there's the whole mass, and then there are the ones जो कि एकदम लेट आते हैं. सो बीच वाला जो मास है वो ऐसे, so एक तरीके का बेल कर्व जैसा वो दिखता है, राइट. करेक्ट. तो उस पर्सपेक्टिव से ना मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है कि अगर हम अंडरस्टैंडिंग या एक जैसे एवरीवन इज फेसिंग दिस थिंग कि नहीं, जो जॉब का हमने पूरा स्ट्रक्चर और जो जॉब मार्केट जो बनाया हुआ है, करंट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कोई भी बहुत अच्छे से ऐसा बोलता हुआ नहीं दिखता कि अरे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हमने बनाया है. पीपल आर लाइक वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन एंड दिस इज द ओनली ऑप्शन, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट. बट एवरीवन, जैसे आपने वो एग्जांपल दिया ना कि अरे विशाल, आई वुड, वो जो आपकी मैनेजर थी कि अरे आई विश आई कुड हैव डन दैट. इनफैक्ट अब आप सोच के देखिए, शी सेड कि I wish I could have also joined an NGO. Yeah. Then you also joined an NGO, and NGO maybe there would be people who would saying, "Arey, I wish I could make that jump." Yeah. So there is always this jump वाला. Yeah. But सभी लोग हो सकता है एक बार में नहीं करें, but कुछ there will be a select few, and there is this group है ना, जो कि इसको लीड करके और ये बोलता है कि नहीं ठीक है यार, I want to understand how whole these things are working. मेरे को कुछ अलग करके देखना है, समझना है. If this works out and when people see them working that way, तो वहाँ से फिर मुझे लगता है कि ये पूरे जनरल मासेस में काम करेगा, है ना. तो अब नाउ इट डिपेंड्स ऑन कि आप जब इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं तो आप अपनी जगह पे कौन सी जगह पे खड़े हैं. अगर आप उस जगह पे खड़े हैं कि नहीं भाई, मैंने तो बहुत सारा EMI भी ले लिया है और पूरा अपना फैला दिया है और एक लाइफस्टाइल है और घर वालों को भी शिफ्ट कर दिया है, तो आई हैव टू कंटिन्यू एंड कीप डूइंग इट, देन कीप डूइंग इट. There's no other option. Yeah, true that. I mean, मतलब अब आपने फैला दिया. अब आप प्लेन में हो ही, ठीक है, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट के बीच में हो, वहां से कूद ही नहीं मार सकते. You have to reach the other airport. There's no other option. Yeah. So then the way out for at least we can say this way कि at least because now they have realized. So with that awareness, at least आगे the moving forward the decisions that they are gonna make. हाँ, but आप उस प्लेन में बैठ के भी देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, राइट. इट्स ऑल्सो अबाउट कि अब मैं जिस सिचुएशन में हूँ ना, सो मे बी दैट जॉब जंपिंग इज समथिंग दैट आई वुड नॉट बी एबल टू डू, और आई एम नॉट इन दैट अग्रीमेंट दैट आई वांट टू डू इट, राइट. बट इट्स नॉट इवन नेसेसरी. आपको अगर एग्जिस्टेंस को समझना है, आपको खुद को समझना है, आपको मतलब इस अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करना है या उस कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस के लिए काम करना है, इट्स समथिंग विच स्टार्ट्स विथ यू एंड नो वन इज स्टॉपिंग यू. द आइडिया इज हमारे पास जितना टाइम है, उस टाइम को हम कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको तो हम एनी टाइम कंट्रोल कर ही सकते हैं, है ना. तो अगर मैं अपने 8 घंटे या 10 घंटे भी जॉब में दे रहा हूँ, तो उस जॉब में भी कितना टाइम है जो कि मैं वहाँ पे लगा सकता हूँ, या घर पे भी आके कितना टाइम है. अभी मैं घर पे भी आके बैठ के 2-2.5 घंटे नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहा हूँ. सो दैट इज समथिंग विच कुड बी रिप्लेस्ड बाय समथिंग ऑफ अ मोर मोर क्वालिटेटिव थिंग, जिसमें आप शायद बैठ के अपने आप को समझ पाओ या आपके इस क्वेश्चंस को समझ पाओ. और आप उस पर जैसे जैसे काम करते जाते हो, जैसे जैसे उसका और आप एक समझने की तरफ अध्ययन और वो करते जाते हो, तो वहाँ से मुझे लगता है कि फिर ना जितनी जितनी क्लैरिटी बढ़ती है, तो बहुत जल्दी जंप करना कोई ज़रूरी नहीं लगता. मुझे ऐसा लगता है कि पहले उसको समझा तो जहाँ पे बैठे वहाँ से जा सकता है. समझने के बाद क्या करना है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो ही जाएगा. Okay. So that's what I mean. Like while they start, first it starts with awareness,
I mean, with awareness, then they start exploring and working on themselves, where they are working on the purpose and the meaning to the life through any path that they feel right, and then automatically they would not make hasty decisions with more EMIs and more loans, which would eventually Exactly. first is that, and even where they're standing, they can curb their curb their expenses. Like it can tangibly, this can look like this. वेरी वेरी स्मॉल Small डिसीजन decisions. कि अभी मेरे पास 2 घंटे हैं, मैं ये 2 घंटे का, या मेरे पास अभी 10 मिनट है, इस 10 मिनट में मैं बैठ के यूट्यूब को स्क्रॉल करूंगा और शॉर्ट्स देखूंगा या इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स देखूंगा, क्या ये 10 मिनट में कुछ मीनिंगफुल पढ़ूंगा, है ना? या फिर मैं अभी वेकेशन पे जा रहा हूँ, तो मैं वेकेशन पे कहाँ जाऊंगा? वुड आई गो टू अ प्लेस जहाँ पे बस मैं मतलब आई ड्रिंक एंड पार्टी एंड आई बी बैक, या फिर कोई ऐसी जगह जाऊंगा कि मेरे वेकेशन में मेरे कुछ क्वालिटेटिव मेरे अंदर चेंज हो पाता है? Yeah. तो वो डिसीजंस की पूरी एक रेंज हो सकती है ना? मैं किस बारे में बात करता हूँ, किन लोगों के साथ कांटेक्ट करता हूँ, किस तरह के वीडियोस देख रहा हूँ, वो सारे के सारे डिसीजंस तो मेरे पास आज भी हैं। तो हम ना जब बड़े डिसीजन में अटकते हैं ना कि नहीं, जब तक मेरी जॉब में चेंज नहीं करूँगा तब तक आई एम स्टक, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई जॉब तुम्हारा प्रॉब्लम ही नहीं है ना? मतलब इट इज़ ऑलवेज लाइक You कि are ना right. हमेशा छोड़ना बहुत ईजी लगता है ना, Yeah. कि बस छोड़ दिया और सब ठीक हो गया। Yeah. बट आई थिंक यू हैव हैड दैट फेयर शेयर जहाँ पे Yeah. आपने देखा है कि हाँ ये भी छोड़ दिया, ये भी ये भी छोड़ दिया, छोड़ ये दिया, भी छोड़ दिया, लेकिन फाइनली करना क्या है वो समझ में नहीं आया, तो समझ- छोड़ने का फायदा कोई नहीं फायदा होता। नहीं, because until you get a better alternative, which is actually better, that starts within you. People think it's always on the outside, but with enough exploration and experience, what I have come to this conclusion is that first it starts within you. Like True. once you start qualitatively becoming better, that also in a way starts manifesting outside. I mean, I have seen that with the more I worked on my own self, my friends changed, my colleagues, my everything, the priority of people, everything changed, but it changed for good. The people I used to hang out 10 years before, I probably do not. Even if I do, they see me differently, and we talk different topics which are not shallow. And most of the time I spend with better people. So essentially the existence is anyways ना, it wants to help you grow. Yeah. वो हमेशा है ही। ओनली थिंग इज कि हमारी कैपेसिटी की बिल्डिंग हमने कितनी की हुई है। अस्तित्व में ज्ञान नहीं है ऐसा तो नहीं है, अपनी पात्रता विकास पे काम करना है। तो फाइनली वो जो पात्रता विकास का काम है ना, वो तो मुझे ही करना है। तो अब मेरे पास अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ही, मैं जो भी जिस भी सिचुएशन में हूँ, जहाँ पे भी हूँ, वहाँ से भी छोटे छोटे डिसीजंस को मैं लेके आगे बढ़ने का अपना रास्ता बना ही सकता हूँ, है ना? तो आई वुड से कि मतलब ना फोकसिंग ऑन दिस, कह रहे नहीं मतलब ये जॉब के कारण मैं अटका हुआ हूँ या ऐसा वाला है। आई थिंक फिर थोड़ा सा और डीपर देखना पड़ेगा कि शायद जॉब नहीं, मतलब व्हाट गॉट मी हियर इन द फर्स्ट प्लेस इज नॉट समथिंग विच विल हेल्प मी कम आउट ऑफ इट, राइट? Yeah. तो अगर मेरी मेंटालिटी में, मेरी अंडरस्टैंडिंग में कहीं पे प्रॉब्लम है, तो मैं अगर ये जॉब छोड़ूंगा ना, फाइनली उसी जगह पे फंसूंगा हाँ. जहाँ पे, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं है, तो मेरे लिए तो वही सिचुएशन है ना। तो जैसे ये मुझे ना काफ़ी इंट्रीगिंग लगता है कि जैसे मान लो मेरे को अभी ना मेरे को खाने पीने का बहुत अच्छे से वो नहीं है ना, मतलब अभ्यास नहीं है, मतलब आई वुड ईट समथिंग और डू समथिंग एंड दैट इज़ वाई हैव अ बॉडी विच इज़ ओबीज, ठीक है? नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट, आई एम लाइक कि अच्छा नहीं, अगर मान लो मैं ऐसा देखता हूँ कि चलो मैं एक कंटिन्यूस रियलिटी हूँ और ये बॉडी बदल के मैं दूसरी बॉडी में आ जाऊँगा, आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग विद दैट बॉडी एज वेल, Same. क्योंकि मैंने नहीं सीखा है ना। Yeah. Makes sense. तो मैं मतलब अलग अलग एग्जाम्पल से सोचते हो, मेरे को ड्राइविंग नहीं आती है, मैं ये गाड़ी चलाऊंगा, ये गाड़ी चलाऊंगा, ये गाड़ी चलाऊं। मेरे को जीना नहीं आता है, मैं ये जॉब करूं, ये जॉब करूं या ये जॉब करूं। Yeah. फाइनली मेरे को सीखना पड़ेगा ना कि जीना कैसे है। मेरे जॉब कर लेने से या छोड़ देने से या कंपनी चेंज हो जाने से या उसकी जगह एनजीओ में काम कर लेने से व्हाट डिफरेंस इज गोइंग टू मेक अनटिल एंड अनलेस मेरी खुद की मेंटालिटी नहीं बदलती। और अगर मेरी खुद की मेंटालिटी बदल जाती है, how long it will take to actually change things externally? Makes sense. I mean, we always, I don't know, for some reason, we are conditioned in such a way that we always feel the grass is greener on the other side. And we tend to see the positives on the other side, negatives on what we have got, and we then start comparing. And then obviously the other side would look better because you're seeing only the positives there and your own negatives. But from a bird view, you're not able to see things as they are. And for that bird view, you need to have a level of maturity and understanding which you're talking about. So yeah, it does make sense. बढ़िया. Yeah. So I think we can close this one then.
Yeah, we can close this. But Yeah. just before closing, like, can you give some a point to start? Because many times, like, we did have abstract thoughts and working on ourselves and everything, but any point to start, like, you also have talked so much about Madhyas Darshan. So anyone watching us, if they want to start somewhere, a starting point, what would that be? हाँ, दिस इज गुड. तो एसेंशियली ना मतलब इसको मैं थोड़ा सा लेंथ में रख देता हूँ. द आइडिया इज कि ना आई हैव पर्सनली ट्राइड डिफरेंट वेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी द वे वी से इट. तो अलग अलग तरीके होते हैं, मेडिटेशंस हैं एंड दिस एंड दैट एंड सो मैनी वेरियस वेज. फॉर मी पर्सनली एंड आई थिंक अभी के लिए भी जिस तरीके से करंट हमारा एजुकेशन है और जिस तरीके का है, द मोस्ट the easiest, the most apt, and I would say कि a workable logical path that I see is that of Madhyas Darshan. To start understanding Madhyas Darshan, मेरे को लगता है कि ओके मैं पहले से बस थोड़ा सा इसका कनेक्शन बैकग्राउंड रख देता हूँ. तो हुआ क्या ना कि हमारे पास ना मतलब पूरी ह्यूमैनिटी इवॉल्व होती है, राइट? और इस इवोल्यूशन के क्रम में ना हमारे पास बहुत सारे अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग व्यूज़ होते हैं, और इसी के क्रम में ना अलग अलग दर्शन भी होते जाते हैं. तो ऐसा होता है कि जैसे एक दर्शन में या एक किसी चीज़ में हमने किसी रियलिटी को देखा है ना, तो पहले क्या था कि हमारे पास क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं था, तो अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज़ में जहाँ जहाँ से कोई विजन या कोई व्यू मिला वहाँ वहाँ पे लोगों ने उसको स्वीकार किया. उसी के कारण आप रिलीजन्स को देखेंगे ना, तो उस जगह की जो एक पूरी कल्चर है, उस कल्चर के साथ वो रिलीजन्स ग्रो हुए. जैसे जैसे हम और यूनिवर्सल होते जा रहे हैं ना, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो फिलॉसफीज़ हैं, लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स हैं, दे आर नाउ बिकमिंग एमलगमेटेड, है ना. इन अ वे नाउ वी हैव दिस होल सिस्टम्स जहाँ पे दे आर कमिंग क्लोजर टुगेदर. तो नाउ वी थिंक समथिंग, वी नीड समथिंग विच इज़ मोर यूनिवर्सल, है ना. तो अभी अगर मैं उस तरीके से बात करूँ तो मेरे को लगता है कि विथ अपग्रेड्स, तो वो जो लेटेस्ट वर्जन है ना, मतलब अगर मेरे को आज आईफोन खरीदना होगा तो मैं अभी आईफोन 10 नहीं खरीदूंगा, मैं प्रोबेबली आईफोन 17 ही करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी सिक्योरिटी फीचर्स हैं या जो भी हैं वो अभी हैं, और आईफोन 10 उस तरीके से हो जाएगा. बहुत डिस्टेंट है, लेकिन ये सेम लॉजिक अगर मैं फिलॉसफी की जगह से बात करूँ तो मुझे लगता है कि फाइनली एग्जिस्टेंस का ज्ञान तो वैसा ही है, पर ह्यूमैनिटी कितना उसको समझ पाई है और कितना उसको कम्युनिकेट कर पाई है, वो लेवल्स हमेशा चेंज होते हुए हैं. तो उस जगह से भी जो लेटेस्ट फिलॉसफी और जो मुझे लगता है कि बहुत कम्प्लीटली शायद समझ पाई है, एटलीस्ट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बन पाई है, उस जगह से मुझे मध्यस दर्शन ऐसा लगता है कि इट इज़ द लेटेस्ट फिलॉसफी दैट वी हैव. इट इज़ द क्लोजेस्ट और प्रोबेबली द एग्जैक्ट प्लेस जहाँ पे पूरे एग्जिस्टेंस को जैसा है वैसा समझा और कम्युनिकेट किया गया है. सो मतलब आई एम नॉट श्योर वेदर गोइंग विद एनी अदर फिलॉसफी वुड माइट वर्क फॉर यू. बट फ्रॉम मी पर्सनली आई वुड से कि स्टार्टिंग विथ मध्यस दर्शन इज़ अ गुड चॉइस, क्योंकि मॉडर्न है, लॉजिकल है, लैंग्वेज और वो सब के हिसाब से बहुत ईजी है. एंट्री पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट है, एंट्री पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट उस तरीके से जाता है. तो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मुझे लगता है कि मध्यस दर्शन में द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ एक्चुअली अ 7-day वर्कशॉप. इट्स कॉल्ड परिचय शिविर, है ना. नाम में शिविर है, पर एक्चुअली इट्स मोर ऑफ अ कॉन्वर्जेशनल वर्कशॉप जहाँ पे आप डिस्कशंस के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं 7 days में. एंड दैट वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको मध्यस दर्शन को समझना हो. बट उसके पहले लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स माइट बी देयर जिसमें आप मध्यस दर्शन का कुछ एक इंसाइट लेना आप चालू कर सकते हैं. सो Makes आई थिंक sense. दैट वुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. Definitely. Great. Okay. बढ़िया. Yeah. थैंक Thank यू. you.